Hi everyone, this side Gayatri Sharma and welcome back to my YouTube channel. And today I want to discuss on the topic how to be how to stop being a nice girl or a good girl in front of anyone or anything. Firstly, I want to clarify the thing that there is a difference between the nice girl or a good girl. Means being nice is not means that you are a kind or you are a very good person, because if you say yes to everything, means you inside you are suffering, but instead of all that stuffs inside you, you always says yes to everything. Today I want to discuss on this topic, so I will use the mixture of both English or Hindi. I can continue with English, but as our native language is Hindi, so we can express our thoughts or thinking better in Hindi. We can also express our thoughts in English, but the thoughts that are coming from the heart, you can better speak in Hindi. And English is not so much type of fear or anything. It's a language like Hindi. The main thing is that your communication skill is good, whether you can express your thoughts in Hindi or it can be in English. So as I love to speak in English, so I love to speak in English. I want to give my thoughts better in English, but I will use both. आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे कि एक नाइस गर्ल और एक काइंड गर्ल, इसमें क्या डिफरेंस है, एंड what you want to become, because many girls suffer, whether it is in a family or outside. इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, एंड नॉट ओनली फॉर द गर्ल्स, इट कैन बी एप्लीकेबल फॉर बोथ, either it's girls or boys. So we will continue and start our conversation of the day. I will not take much time, and I will give only 10 to 15 minutes on this topic. So as based on my experience, I will discuss on this tip, as I'm 25 years, and I have total 25 years of experience in that. So you everyone has an experience in their life, and someone has a bad, someone has a good. So everyone can have different thoughts, everyone has different feelings, but we can learn from the other mistake, so we can improve our lives better. So इसलिए आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, तो नाइस, गुड और अ काइंड सिमिलर वर्ड्स लगते हैं, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन ऑल दिस थिंग्स. इफ़ यू सेड यस टू एवरीथिंग, मतलब आप हर चीज़ के लिए हाँ हाँ करते हो, सो यू आर लाइकेबल मीन्स आप सबको आप अच्छे लगोगे, क्योंकि क्या है, पीपल प्लीजिंग. It is like a people pleasing. If you are nice, you are like a people pleaser. If people appreciate you, appease you, you will be happy. But okay, that's human nature. If someone's appreciate you, you should be happy, or you must be happy. But you must create one thing in your mind, that your character is not based or judged by the pupil. For a time, means after some time, you depend upon the people, that if people say good things about you, then you think that you are good and you feel happy. But after sometimes, the same people think bad or worse about you. You are sad, and you think about yourself, you have a queries or doubts about yourself, that I think I'm like that, what the other people said that. So this is the biggest lesson in your life that you must have to learn. What lesson? That your character, your happiness, your sadness is not based on the people thinking, because
जो भी हमारे आसपास के लोग होते हैं या फिर कुछ भी होता है, उन सबका वो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उनकी खुद की सेल्फिशनेस एंड ऑल थिंग्स पे डिपेंड करता है। इफ़ यू आर गुड, if you are saying yes to their things, or if you are means doing good things to for them, so you are good in front of them, बट इन रियलिटी मतलब आप सफ़र कर रहे हो, आप कभी उनको ना कर देते हो कि मैं नहीं कर सकता, या फिर आप अपने लिए आवाज़ उठाते हो, तो उन्हीं लोगों की नज़रों में आप क्या है, आपकी इमेज डाउन होने लग जाती है। वो आपके बारे में चार बातें बोलेंगे, आपको सुना भी देंगे कि हाँ तू तो सेल्फिश है, तू तो सिर्फ अपने बारे में सोचती है एंड ऑल दैट। सो इसी थिंग्स को आप अपनी लाइफ में क्लियर करना है। फर्स्टली यू हैव टू बी अ क्लियर थॉट्स इन योर माइंड अबाउट योर सेल्फ, मीन्स अपने बारे में आपको, चाहे फिर लोग हज़ार लोग कुछ भी आके बोले, वो हज़ार लोगों की भीड़ में आपने अपने अंदर के उस एक पॉइंट को वो रखना है कि नहीं, मैं ऐसा हूँ तो ऐसा ही रहूँगा, चाहे 10 बंदे बोले, 100 बंदे बोले, 1000 बंदे बोले, यू हैव दैट मच गट्स दैट कि हाँ मेरे बारे में ये पॉइंट वैलिडेट है, मैं सही हूँ, फिर आपको उस पॉइंट से नहीं वो करना है। होता है ना ऐसा कि अपने पॉइंट पे वो रहते हैं ऐसा वैसा, तो ये इमेज आपको अपने माइंड में क्रिएट करनी है अपने बारे में कि नहीं मैं ऐसा नहीं, मैं अच्छा हूँ, बट हर बार मैं सफ़र नहीं करूँगा, मैं ही क्यों, हमेशा मैं ही क्यों करूँ। आई हैव ऑल्सो सेल्फ रिस्पेक्ट, आई हैव ऑल्सो फीलिंग्स, एंड मैं अपनी फीलिंग्स, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा डाउन करता रहूँ ताकि मैं उनकी नज़रों में अच्छा बना रहूँ एंड ऑल। सो इस टाइम पे आपको क्या करना है, बिकॉज टूडेज़ वर्ल्ड इज़ मतलब वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है कि अगर आप उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप उनके लिए अच्छे हो, वरना आप उनके लिए बेकार हो, फालतू हो। मतलब आजकल जनरेशन एंड ट्रेंड कैसे चला, यूज़ करने का, चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज़ हो, फ्रेंड्स हो, एनीथिंग, कि अगर उससे हमें कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो हम उसके आस-पास रहेंगे, उसका वो करेंगे, ऐसा वैसा, ऑल दीज़ थिंग्स। बट और अगर आप कुछ भी यूज़ के नहीं हो, मतलब कुछ आपसे काम निकालना होगा तो आपके आस-पास आ जाएँगे, अगर नहीं होगा तो यू आर साइड कैरेक्टर। सो इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको क्या, अपने दम पे खड़ा रखने का कैपेबिलिटी रखो कि अगर है साथ तो ओके, नहीं है तो भी ओके। द वन पर्सन विच supports you, will stand you, is only you, because there is no one, all that are imaginary and all stuff, okay? So you must be capable and strong। अगर कोई फ्रेंड्स फैमिली सब कुछ साथ में तो ओके, दैट इज़ वेल एंड गुड कि रिलेशनशिप होने चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए, बट डोंट डिपेंड सो मच, डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, अगर है तो भी ओके, नहीं है तो भी ओके, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आपने सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है क्या, कि आपने अपने आप को समझना है, अपने आप को वैलिडेट करना है कि हाँ मेरे बारे में ये है और मैं ऐसा ही हूँ। मतलब वैसे आज की यंगेस्ट जनरेशन बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा काइंड है एंड वो थोड़ा समझते हैं एज़ कम्पेयर टू द ओल्डेस्ट और द न्यू जनरेशन। तो जनरेशन लाइक मी, तो मतलब काइंड भी एंड ऑल भी, बट वो है कि खुद को सफ़र नहीं करना है दूसरों के चक्कर में। समटाइम्स होता है कि हाँ चलो कई बार कर लेते हैं कि उसने भी किया तो हम भी अपने तरफ से थोड़ा एफर्ट्स दे सकते हैं, बट इफ़ द एफर्ट्स आर ओनली बाय वन साइडेड, देन से नो, से नो, डायरेक्टली नो। थोड़े टाइम के लिए गिल्ट होगा, खुद को भी गिल्ट होता है, जो अच्छे इंसान होते हैं वो ना नहीं बोल पाते, मतलब, और अगर वो कभी ना बोल भी दे तो वो ओवर थिंक करने लग जाते हैं कि यार क्यों ना बोला, वो क्या सोच रहा होगा, ऐसा वैसा, बट दे डोंट थिंक सो मच। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा ह्यूमन माइंड है, क्योंकि जैसे जो अच्छे इंसान होते हैं उनको, मतलब ऐसा ही उन्होंने देखा होता है कि मतलब उनको वो पता क्या फ़ील करने लग जाते हैं कि हाँ जब मेरे को कोई ना बोलता है तो मुझे कैसा फ़ील होता है, एंड दे नेवर आस्क हेल्प from the others, they always help, like they are always giver, so that giver people all sometimes tired, yeah, we are also human beings, we also get tired and never ask help for the animal, like independence. So yeah, that's very good nature, but is कि if you are tired, if you are not interested to do that
अ, सबसे पहले अपनी इमेज अपने अंदर, और एज वी ऑल बिलीव इन गॉड, तो गॉड के ऊपर विश्वास रखो, ट्रस्ट रखो, ठीक है। सो ऑल डोंट ऑलवेज गिव गिव गिव, समटाइम्स यू ऑल्सो हैव टू टेक, ओके। यू आर गिविंग, सो एक्सपेक्ट ऑल्सो टेक, नॉट सो मच होप्स एंड वो, बट वो है कि अपने हक के लिए बोलना स्टार्ट करो एंड ऑल। एक्चुअली टॉपिक इज़ अनदर वन, बट वी मीन्स जब वो बोलने लग जाते हैं तो हर कुछ वो हो जाता है, ठीक है। ओके ओके, सो यही था हमारे पास कि बी काइंड बट नॉट टू बी नाइस। मतलब काइंडनेस आपको कहाँ पे शो करनी है कि हाँ, जहाँ पे आपको लगे कि दैट पर्सन इज़ हेल्पलेस, मीन्स नो वन इज़ कम टू हेल्प दैट पर्सन, एंड इफ़ यू आर कैपेबल ऑफ गिविंग द हेल्प टू दैट पर्सन, you must be stand for them, okay। but if the same thing goes, मतलब आपका फॉर एग्जांपल आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, और आपकी उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ओके। एंड जब भी वो आपसे हेल्प मांगता है, आप हमेशा होते हो वहाँ जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, यू आर ऑलवेज देयर। बट थिंक कि अगर जब आपको हेल्प चाहिए होती है, क्या आप भी बोल पाते हो उसको, वो आपके साथ चलता है, या फिर सिर्फ एक्सक्यूजेज एंड ऑल देता है। तो उस टाइम आपको थिंक करने की ज़रूरत है। और अगर आप बिना सोचे समझे जा रहे हो उसके साथ हमेशा वन साइडेड, तो दैट इज़ कॉल्ड वन साइडेड एफर्ट, और वहाँ पे आपको स्टॉप करने की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि ऐसा नहीं करना है, इससे तो आप ही खुद को सफ़र कर रहे हो। बट इफ़ द एफर्ट्स आर फ्रॉम द बोथ साइड्स, इफ़ यू नीड देम, they are always there for you, then that is very nice। but if the efforts are only from the one side, then there should be some boundaries। so here the boundaries word come। सो आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी होगी इसके लिए। तो यही है इस वर्ल्ड में जीने का एक तरीका कि डोंट होप, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर्स, एंड गट्स रखो नो कहने की। अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो से डायरेक्टली नो, एंड because the nice people never say no, they always get hurt, means वो दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं ना बेचारे, खुद के बारे में सोचना भूल जाते हैं। तो इसीलिए अपने बारे में थोड़ा सोचना स्टार्ट करो, अपनी को प्रायोरिटीज़, अपने को प्रेफरेंस देना स्टार्ट करो। ये नहीं किसने बोला हाँ चलो चल दिए, ये नहीं किसने भी बोला ये खा लेते हैं, खाने का मन भी ना करे, नो खा लेते हैं, ऐसा वैसा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बी गुड, बी जेंटल, बी काइंड, बट all firstly you have to take care of yourself, prioritize yourself, because there is no one when you feel sorrow, when you feel sadness, when you feel happy, so always there is a one person, that is you. So be take care of yourself firstly, then after the others, society, family and all, okay। Families are another issue, but if you are living in the world, in the outside of the world, so firstly prioritize yourself, preferences yourself first। so today's topic is enough, and thank you so much for listening. Bye bye.